Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the chapter 3, two stories about flying. Here you will find two stories. First story title is His First Flight, written by Liam O'Flaherty, and the second story is Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth from your book First Flight. Now I am going to start with the first part of the chapter, that is His First Flight. Before you read, let us go through what is there in the chapter. Since the earliest time humans have dreamt of conquering the skies, here are two stories about flying. Obviously, it's a dream of human being always from ancient time, that we used to dream that we should fly, and with Wright brothers and many inventors, we were able to fly in the sky. And here are the two stories. One is about a bird. A young seagull is afraid to fly, and how does he conquer his fear? That we will learn in this story. And the second is a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? So this we will learn in these two stories. Let us start with the first story, that is His First Flight. His First Flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraidingly him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. Now let me make you understand what I have read. His first flight, उसकी पहली फ्लाइट, पहली उड़ान. द यंग सीगुल, यहाँ पर जो चिड़िया है उसका नाम है सीगुल. ये समुद्र के पास पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम ही सीगुल है. और ये कहाँ अलोन बैठा हुआ है. लेज का मतलब होता है पहाड़ के किनारे के तरफ का. एज जैसे होता है वैसे लेज होता है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही वो लोग उड़ना सीख गए हैं. इससे पहले ही, इस चिड़िया से पहले ही उड़ना सीख गए हैं. He had been afraid to fly. वो डरा हुआ है, वो उसे डर लग रहा है उड़ने से. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge,
वो थोड़े कदम आगे आता है पहाड़ी के एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाना चाहता है तो वो अफ्रेड हो जाता है। ही बिकेम अफ्रेड। क्यों अफ्रेड हो जाता है, क्यों डर जाता है? द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, मतलब वो पहाड़ी पर से देखता है कि इतना बड़ा सी है और वो कितनी गहराई में है, नीचे है। तो वो एक तो सी को देख कर डर जाता है और फिर डेप्थ को देख के डर जाता है, जो गहराई उसको देख के डर जाता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत नीचे नीचे नीचे, बहुत नीचे गहराई में जा रहा है, माइल्स डाउन। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ये एहसास हो गया कि मेरे विंग्स, मेरे पंख मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं उड़ नहीं पाऊँगा। So he bent his head and ran away back to the little hole, इसलिए वो वापस से पीछे दौड़ जाता है और उस होल में चला जाता है लेज के, जहाँ पर वो रात में सोता है। इवन when each of his brother and his little sister, जो उसके भाई हैं और उसकी बहन है, उनके जो पंख हैं वो इसके पंख से छोटे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, ब्रिंक पे आते हैं, एज पे आते हैं और फिर फ्लैप करते हैं अपने पंखों को और उड़ जाते हैं। लेकिन ये फेल्ड हो जाता है करेज इकट्ठा करने में, हिम्मत इकट्ठा करने में। ही फेल टू मस्टर्ड अप करेज, ये करेज गैदर नहीं कर पाता है। टू टेक दैट प्लंग, एक उछाल लेने में कि पंख फड़फड़ाकर एक बार उछल कर उड़ जाएं। ही विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, निराशाजनक हो जाता है, ये बहुत निराश हो जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पंख मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब इनके माता पिता आते हैं, ज़ोर ज़ोर से श्रीली आवाज़ दे दे के बार बार बुलाते हैं, स्कोल्ड भी करते हैं। ब्रेडिंगली का मतलब होता है स्कोल्ड करना, थ्रेटिंग का भी मतलब होता है डांटना, और डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हें खाना नहीं देंगे और इसी लेट पे तुम पड़े रहोगे जब तक तुम उड़ोगे नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, और वो जो उसकी यूल है उसको लाइफ से ज़्यादा, जान से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं हो। कहता जान है तो जहान है, मैं नहीं उड़ने वाला क्योंकि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगा और डूब के मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा। That was 24 hours ago. ये चीज़ जो है 24 घंटे पहले हुई थी। Since then nobody had come near him, और कोई भी उसके पास तब से नहीं आया था। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. तो वो 24 घंटे से ऐसा हो रहा था, उसके पास कोई नहीं आया था, और एक दिन पहले ही से वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स कैसे उसके ब्रदर और सिस्टर को, भाइयों बहनों को उड़ने में और फिशिंग करने में, फ़्लाइट लेने में कैसे परफेक्शन ला रहे हैं, कैसे मतलब उनको सिखा रहे हैं, स्कीमिंग करना सिखा रहे हैं। स्कीमिंग का मतलब होता है टू मूव लाइट जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द सी, ओके। तो वो सिखा रहे हैं कैसे करना है, और मतलब ऐसा हुआ था कि उसके भाई ने तो फ़िश भी पकड़ी, डाइव करके फ़िश भी पकड़ी, और फिर उसको हेरिंग जो है, हेरिंग इज़ द नेम ऑफ अ फ़िश, और उसको खाया भी और डिव्योर किया, मतलब खा लिया।
standing on a rock while his parents circle around rising a proud cackle. वो वहाँ पे जब खा रहा था तो उसके पेरेंट्स उसके इर्द गिर्द उड़ के उसको प्रेज कर रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा तरीके से फिश को पकड़ा और खाया. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारी फैमिली, सारे लोग, उसके भाई बहन, मम्मी पापा, सब उसको टॉन्ट कर रहे थे एज पे आके, प्लेटो पे आके कि तुम कायर हो, तुम कायर हो. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द सी. जो सूरज है वो असेंडिंग हो रहा था, सी की तरफ जा रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. साउथ की तरफ उसका फेस था. ही फेल्ट द हीट. उसको सूरज की गर्मी महसूस हुई. बिकॉज ज़्यादा महसूस इसलिए हुई क्योंकि वो भूखा था. बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. उसने रात से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then other. वो धीरे से बाहर आया और धीरे धीरे चल के वो ब्रिंक एकदम किनारे, लेज के किनारे तक आ गया. वहाँ पे खड़ा हो गया. कैसे खड़ा हो गया? एक पैर को अंदर अपने पंखों में डाल लिया और एक पैर से खड़ा था और आंखें बंद कर लिया. और पहले एक आंख बंद की, ही क्लोज वन आई, और फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली. ही प्रिटेंडेड to be falling asleep. Still they took no notice of him. उसने इस तरीके से करके आंख बंद करके प्रिटेंड करने की कोशिश की कि वो सो रहा है, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी इसको कोई महत्व नहीं दिया, कोई देखने की ज़रूरत नहीं समझी. Still they took no notice on him. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their neck. उसने देखा कि उसके भाई और बहन जो हैं वो पंख के अंदर अपना मुंह डाल के सोने की कोशिश कर रहे हैं, डॉज कर रहे हैं. His father was preening the feathers on his white back. और उसके फादर, क्या चिड़ियों की आदत होती है जब वो खाली बैठते हैं तो अपने पंखों को क्लीन करते रहते हैं, तो इनके फादर भी उसे क्लीनिंग प्रोसेस को प्रीनिंग कहते हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. खाली उसकी माँ ही उसको देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. वो खड़ी थी कहाँ पे? हाई हम, थोड़ा सा ऊंचाई की जगह पे प्लेटू पे खड़ी थी. विथ वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. जो उसका सीना है वो थोड़ा आगे की तरफ निकला था, फूला हुआ था. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. वो क्या कर रही थी? वो उसके पैरों के नीचे मछली थी. मछली को वो क्या करती थी? अपने चोंच से नोचती थी, नोचती थी, टोर करती थी, फाड़ती थी और उसके बाद अपने चोंच को पत्थर पे स्क्रैप करके और शार्पन करती थी. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. और ये सीगुल ने देखा, खाना देखा तो खाना देखते ही वो पागल सा हो गया. हाउ ही लव टू टीयर फूड. खाना खाना वो कैसे फाड़ फाड़ के मछली खाता था. दैट वे, मतलब जैसे उसकी माँ कर रही थी वैसे उसको भी करना बहुत पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेटेड मतलब टू शार्पन इट. ओके, देन व्हाट हैपेंड? गा गा गा. ही क्राइड बेगिंग her to bring him some food. वो जोर जोर से गा 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 करके बेग करने लगा, मतलब रिक्वेस्ट करने लगा कि खाना लाओ, खाना लाओ. माँ ने भी कहा गाओ, कॉल्ड आ. शी स्क्रीम्ड बैक ड्रीसिवली. ड्रीसिवली का मतलब क्या होता है? ड्रीसिवली का मतलब होता है in a manner that you are stupid, I am not going to bring any food for you. तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं लाने वाली. She screamed back decisively, but
He kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन वो कंटिन्यूसली गा 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 बोलता रहा, और थोड़ी 1 मिनट बाद उसने देखा, मतलब 1 मिनट बाद उसने बहुत खुशी से वो ज़ोर से चिल्लाया गा गा गा। क्या देखता है कि उसकी माँ जो है, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ मुंह में एक पीस मछली का दबाकर उसकी तरफ उड़कर आ रही है। He leaned out, वो झुका कहाँ, eagerly tapping the rock with his feet. Tapping मतलब बच्चों की तरह पैर पटकते हुए पत्थर पे वो झुका। Trying to get nearer to her as she flew across. वो और पास जाना चाहता था अपने माँ के, क्योंकि वो उड़ रही थी। But when she was just opposite to him, बहुत बहुत करीब आ गई, एकदम अपोजिट में थी, she halted, वो रुक गई। Her wings motionless, उसने अपने पंखों को रोक दिया। The piece of fish in her beak, उसके मुंह में मछली का टुकड़ा था। Almost within reach of his beak, बस एकदम करीब ही था, मतलब आसपास जरा सा बहुत कम दूरी थी शीगुल और उसकी मदर के बीच में। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. वो थोड़ा एक मोमेंट के लिए रुक गया और सोचने लगा कि माँ क्यों नहीं मुझे आकर खिला रही है। Why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. और जब उससे वो सरप्राइज़ हो गया, कि वॉन्डर्ड हो गया कि माँ क्यों नहीं खिला रही है, तो वो भूख के मारे एकदम से पागल हो गया था और वो छलांग लगाया कि मैं फ़िश को पकड़ लूँ। With a loud scream he fell outward and downwards into space. और जैसे ही उसने छलांग लगाया वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जाने लगा स्पेस में। Then a monstrous terror seized him and his heart beat stood still. उसको एकदम से जैसे लगा किसी दैत्य ने ये कर लिया है। दैत्य वाला मतलब वो डर के मारे इतना घबरा गया कि उसकी हार्ट बीट स्टिल होने लगी, रुकने लगी। ही कुड नॉट हियर नथिंग, मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, 1 मिनट के लिए ऐसा हुआ बस। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और नेक्स्ट ही मोमेंट उसे लगा उसके पंख खुल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और हवा उसके फेदर्स के बीच से जा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के अंदर से। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अगेंस्ट हिज विंग्स, और वो उड़ने लगा हवा के रुख के उल्टी दिशा में। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे पता चल रहा था कि उसके जो पंख हैं वो हवा को काट रहे हैं और वो उड़ रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो नीचे नहीं गिर रहा है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। उस समय वो मतलब जो है ऊपर नीचे करते हुए डाउनवर्ड्स और आउटवर्ड ऊपर की तरफ हुए। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी मतलब अनकम्फर्टेबल होता है, और पहली बार उड़ रहा है तो उसे ज़रूर थोड़ा सा डिजी फील हो रहा होगा, है ना। बैलेंस करने में जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे को लड़खड़ा कर चलता है, गिरता है, उठता है, वैसे ही इसको उड़ने में डिजी फील हो रहा है। Then he flapped his wings once and he soared upwards, मतलब उसने अपनी पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ उड़ा। और क्या बोला? गा 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 गा, जोर जोर से गा 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 गा, खुशी के मारे चिल्लाने लगा। गाँव कॉल his mother scooped past him,
मदर ने ये बोलते हुए उसको पास किया, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, जैसे ताली बजाई जाती है वैसे ज़ोर ज़ोर से उसकी माँ अपने विंग को फ्लैप करने लगी। आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसको आंसर किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता भी खुशी के मारे आके स्क्रीम करने लगे। ही सॉ हिज 2 brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and driving. Curveting मतलब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ leaping like a horse, and banking का मतलब fly with one wing higher than the, और soaring का मतलब होता है to fly with full energy, and diving आप जानते हैं what is the meaning of diving. So they all were supporting him and they were very happy for his first flight. And then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो एकदम से भूल गया था कि वो उड़ नहीं सकता था कुछ देर पहले. And commanded himself to dive and soar and curve and shriekingly शहरी मतलब अब वो आवाज़ निकालते हुए उड़ रहा था, ऊपर नीचे सोर कर रहा था, डाइव कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, और उसे लग ही नहीं रहा था कि वो थोड़ी देर पहले उड़ना नहीं जानता था. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with the little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Now he saw he was flying over the means near the sea. sea के ऊपर से उड़ रहा था और flying straight एकदम सीधा उड़ रहा था, facing straight out over the ocean. ocean के ऊपर सीधे उड़ रहा था. He saw a vast green sea beneath him, बहुत नीचे उसके जो sea था, with little ridge मतलब पहाड़ होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं, मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर मतलब सी के ऊपर पहाड़ है. ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काव्ड अम्यूजली, बहुत खुशी से वो चिल्लाया. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, मतलब वो लोग ग्रीन जो ओशन था उसमें उतर गए थे और उसको इनकरेज कर रहे थे. दे वर बैकोइंग मतलब इंकरेजिंग टू हिम, कॉलिंग श्रेली, आवाज़ दे देकर उसको मोटिवेट कर रहे थे कि वो भी आए. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, जैसे ही उसने अपना एक पैर सी में रखा तो वो पानी होता है तो वो डूबने लगा. हिज लेग सैंक इनटू इट, उसका पैर डूबने लगा. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो एकदम डर के मारे चिल्लाया. एंड अटेम्प्टेड टू रेज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश करने लगा. बट ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था. एंड वीक विथ हंगर, और भूखा था इसलिए वो कमज़ोर भी हो गया था. एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं पाया. ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो थक चुका था. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, मतलब इस उड़ने की लगातार, मतलब पहली बार वो उड़ रहा था तो वो काफ़ी थक चुका था अभी तक. हिज फीट सैंक, उसके पैर डूब गए. इनटू द ग्रीन सी, एंड देन हिज बेली टच्ड इट, बेली उसका जो पेट है वो पानी से टच हुआ. एंड ही सैंक नो, वो डूबा नहीं, मतलब वो बाद में डूबा नहीं. ही वॉज फ्लोटिंग, के उसे इसका पता नहीं था. वो उसे लगा कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसका पैर डूबा उसकी बेली ने अपनी उसकी बॉडी को एडजस्ट कर लिया और वो तैरने लगा. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. उसकी फैमिली उसके इर्द गिर्द घूम कर जोर जोर से चिल्ला कर उसकी तारीफ़ कर रही थी, प्रेज़ कर रही थी, और चोंच से नोच कर उसको क्या खिला रही थी, डॉग फिश खिला रही थी. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी. सो हार मानना बहुत गलत बात है,
और आप जब तक कोशिश नहीं करते तब तक आपको विजय नहीं मिलती, विजय श्री ऐसे नहीं मिलती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और माता पिता इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो दिस वाज द स्टोरी, द फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द सेकेंड पार्ट। सो keep on reading, keep in touch, stay safe, stay healthy. Thank you.